Jai Swaminarayan. Today we learn poem of standard 11. The title of the poem is A Photograph. It is written by Shirley Tolson. Now the whole poem is based on grandmother, but what the thing is here, the poem of photograph is placed after the portrait of a lady, which we learn already in our further videos. First lesson of this standard, a portrait of lady, because of the thematic relation between the two. Now what the poem shows here, the thematic relation between the two person which is described in the lesson. Basis of this one poem is here for us. In this poem we learn three phases of life. Whose life of these three phases? Three different phases of life of a ग्रैंडमदर के लाइफ के जो थ्री डिफरेंट फेजेस है वो हमें यहाँ पे पोएम में देखने को मिलेंगे. नाउ वी डिस्कस द फर्दर स्टोरी ऑफ दिस पोएम थ्रू आवर presentation. Through my presentation you can learn this whole story and I explain it by using different three stanzas. First stanza of this poem, a cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling. Paddling means paddles, a slow boat, each one holding one of my mother's hand, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair. Now what happened here? Here describe two girl cousins. They are going paddling a small boat, or they went for paddling, we can say that. Each one holding one of my mother. So each one holding यानी कि दोनों ने अपनी मदर के हैंड्स को ऐसे पकड़ के रखा है. एंड शी द बिग वन, वहाँ पे बिग वन है वो कितने साल के? 12 years old, 12 years एंड और सो, तो उससे भी शायद ज़्यादा. All three stood still to smile through their hair. Three of standing there and there you can say smile on their face. तीनों साथ में हैं और तीनों के फेस पे एक अच्छी सी स्माइल दिख रही है. At the uncle with the camera, जो कैमरा है वहाँ पे a sweet face. उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? बोले कि स्वीट फेस, यानी कि कैमरा है यहाँ पे, जैसे हम फोटो क्लिक कराते हैं तो हमारे फेस पे एक्सप्रेशन अच्छे आ जाते हैं. इज लाइक माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट. पहले जब उनका बॉर्न हुआ था एट दैट टाइम उनका मदर का फेस ऐसा था, स्माइलिंग फेस, बहुत ही यंग थे, एंड इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड दैट थिंग्स पोएट कंपेयर टू दैट सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, के बहुत कम चेंज होने को, या वी कैन से दैट लेस चेंज इन देयर. वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फिट, दैट पासिंग डेज, like days are passing and it disappear the whole things, the poet want to say here. Then other things what the poet describe, that we can see, he describe about his mother's childhood, that capture interesting moments of her mother's childhood. That camera, the camera word here, what describe it we know very well that camera click we use for clicking photographs. And why we click photographs? Because we want to collect some happiest or special moments of our life. As the same here, the word camera illustrate that the interesting moments of her mother's childhood when she went for a sea holiday. वो कहाँ पे गई थी? जब sea holiday पे गई थी तो किन के साथ? With her two cousins. Poet draws a contrast between the sea in which the girls are standing and their transient fit to suggest. उसके जो transient fit यहाँ पे लिखे है तो यहाँ पे दिया गया है, वो क्या suggest कर रहा है? Shortness of human life and slow changing sea.
कि सी में तो बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं, बट इट इज अ स्लो चेंज मोमेंट. द पोएट वांट टू से द थिंग्स हियर इन फर्स्ट स्टैंजा. Now in the second stanza we can see that some 20-30 years later she will laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. Here snapshot means a photograph. Then one word is given here, wry, that is turn away, बदल जाना. और यहाँ पे कितने साल आगे आ गए हम सब, 20-30 ईयर्स लेटर. पहले 20-30 ईयर्स पहले की बात है, अब 20-30 ईयर्स लेटर की बात हो गई है. शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट में दिखाई दे रहा था वो, जैसे पहले फोटोग्राफ क्लिक किया था वहाँ पे वो तो बहुत ही स्माइलिंग फेस था, अच्छे से हंसता हुआ. और उसके साथ में क्या था, सी बैटी एंड डॉली, जो वहाँ पे 2 गर्ल्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कजिन गर्ल्स का, वही यहाँ पे नेम भी है, बैटी एंड डॉली, दोनों साथ में. लुक हाउ दे ड्रेसर्स फॉर द बीच, यानी कि वो सी हॉलीडे पे गए थे तो कैसा ड्रेसअप किया था, तो वो ये सब रिमाइंड कर रही है फोटोग्राफ्स देखते हुए. जस्ट रिमाइंड दैट मोमेंट वाइल सीइंग दैट स्नैपशॉट. देन वो अदर थिंग दैट माइन इज हर लाफ्टर. Look, the sea holiday was her past, mine is her laughter. This is very interesting thing here. Yeah, we can say this is very सैड मोमेंट भी हम कह सकते हैं, मेन थिंग्स, टर्निंग पॉइंट लाइक. उनके लिए यहाँ पे जो पोएटेस है वो क्या कहना चाहती है कि सी हॉलीडेज वॉज हर पास्ट इन दैट फोटोग्राफ, लेकिन मेरे लिए तो उसका जो लाफ्टर है वो पास्ट हो गया है. क्यों? क्योंकि उसके बाद इतना अच्छा लाफ उनके फेस पर दिखाई नहीं दिया होगा, या कुछ चेंज आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 20-30 ईयर्स लेटर की बात हो गई. दैट्स वाई पोएट ऑल्सो रिकलेक्ट्स हाउ हर मदर वुड हैव लाफ. वो क्या रिकलेक्ट किया है कि कैसे वो हंसती थी एट द फोटोग्राफ, एंड फेल्ट डिसअपॉइंटेड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयस. पहले तो वो फोटोग्राफ्स में वो कैसे हंसती थी, और वो यहाँ पे डिसअपॉइंट होती है. क्यों होती है डिसअपॉइंटेड? बिकॉज द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड जॉयस, चाइल्डहुड की जो जॉयस थी, खुशी थी, जो एन्जॉयमेंट थी, वो अब रही नहीं है उनके फेस पे. लाइक दैट पोएट्स मदर हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स. कितने साल हो गए हैं उनकी मदर डेड हो गई है, उसको 12 ईयर्स हो चुके हैं. देन अदर थिंग इज इन दिस सिचुएशन शी फील्स वेरी सैड एंड लोनली. दैट इज द टर्निंग पॉइंट. द लोज हियर डिस्क्राइब एंड देन टर्न अवे. शी टर्न अवे, दैट बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि यहाँ पे दोनों टर्न, राई का मतलब ऑलरेडी आई टोल्ड दैट टर्न अवे, यानी कि लाफ्टर भी अभी नहीं रहा, उनका पास्ट भी, और मदर दोनों अब नहीं रहे, यानी कि वी नो दैट शी हैज़ बीन डेड फॉर 12 ईयर्स. दैट इज ऑलरेडी डिस्क्राइब हियर. ओके, नाउ इन द थर्ड स्टांजा. In the third stanza, now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence is nothing to say. Many years हो चुके हैं, अभी कुछ कहने को बचा नहीं है. And then all circumstances there is nothing to say. Like in this situation she feels very sad and lonely. This loss has left her speechless. अभी कुछ कहने को बचा नहीं है. That's why it's silences. But she has learned to reconcile with this loss with great difficulty. What she had done that learn to reconcile. उसमें से बाहर कैसे आता है? With this loss with great difficulty. Difficulty के साथ जो ये loss हुआ है, that is already trouble for anyone. That's why she reconcile for that. यहाँ पे हमें now the third stanza is over, which is very short. 3 stanza of this poem. I
describe it, but what the main things I want to tell you that the three stanza here shows us three different phases of the life of poet's mother. यहाँ पे थ्री फ्रेजेस दिखाए गए हैं. वो कौन सा थ्री फ्रेजेस है वो भी हमें देखने को मिलेंगे. यानी कि फर्स्ट में तो हमें पता है कि ये चाइल्डहुड में जो जॉइस था उसकी बात है. यहाँ पे जब सेकेंड स्टैंजा में भी यहाँ पे जब वो बहुत उसके चाइल्डहुड के बाद 30 ईयर्स के बाद जब देखने को मिलता है उनकी मदर का डिस्क्रिप्शन कैसा है, जब वो बॉर्न हुई थी एट दैट टाइम, उसके बाद कैसा हुआ था, जब वो बड़ी हो गई तब उनकी सिचुएशन कैसी थी, लाइक वी कैन से मदरहुड. देन द लास्ट थिंग हियर डिस्क्राइब दैट द एंड ऑफ हर लाइफ, दैट लास्ट shows us द एंड ऑफ हर मदर्स लाइफ. और उनकी लाइफ का जो एंड हो गया है वो मोमेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं. तो बॉर्न्स जब चाइल्डहुड से लेके उनके डेथ तक के फ्रेजेस यहाँ पे दिए गए हैं. दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम ऑफ फोटोग्राफ. इट इज़ ओवर हियर. थैंक यू.